قرآن اور حدیث سے دعائیں اور دینی بیانات پانے کے لیے اپنے بچوں پر وسعت ہوگی، کپڑے کے معاملے میں، کھانے کے معاملے میں شاندار کھانا، جاندار کھانا، اچھے کپڑے ہوں گے۔ ہمارے نبی فرماتے 24 گھنٹہ تو خرچ کر لے، سال بھر چھپر پھاڑ کے روزی میں تجھے عطا کرتا رہوں گا۔ ایک کام کر لو، پھر لاک ڈاؤن سے ہمیں کیا مطلب؟ ہمارے کاروبار چلے گا انشاءاللہ، کیونکہ سب کی بات غلط ہوتی، جہاں سارا لاک ڈاؤن فیل ہوتا ہے نا، وہاں ہمارے نبی کا کلام شروع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ یہ میں آپ کو حدیث بتا دی۔ اچھا اب میں آپ کو بتاؤں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر پار ہو گئے، بولو کون سا مہینہ؟ اور فرعون جیسا پاپی مردود ہو گیا، فرعون جیسا پاپی برباد اور تباہ ہو گیا، بولو کون سا مہینہ؟ اور ہمارے نبی نے تو روزہ رکھنے کے لیے فرمایا 9ویں یا 10ویں یا 10ویں اور 11ویں، بولو کون سا مہینہ؟ محرم کی کتنے واقعے سنے؟ دو ہی ہوئے ابھی، تو میں الگ الگ اس کو تقسیم کر رہا ہوں۔ میں کتنے ہوئے؟ ایک حضرت آدم والا اور ایک حضرت بس ارے کچھ تو بولو، میں نکاح قبول کروا رہا ہوں۔ نکاح کے اوپر سے بات کیا ہے؟ حاجی صاحب آپ نکاح پڑھاتے ہیں؟ ابھی میں کچھ زمانے پہلے ہمارے گجرات میں ایک جگہ ہے، نام نہیں لیتا جگہ کا، وہاں پہ بیان کرنے گیا۔ یہ آپ کا مجمع تو پھر بھی بہت اچھا ہے، اللہ مجھے کو مجمع تھا۔ اور مجمع میں سے ایک جوان میرے پاس آیا، میں کہتا ہے مولانا آپ روتے روتے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس یہودی نے اپنا ہاتھ رکھا اور بولو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے کلمہ پڑھا اب مجھے ڈرتا ہاتھ کی جاتا، اب مجھے جانے دے، اب مجھے جانے دے، تو نے میرا بہت امتحان لے لیا، تو نے میرے ہاتھ پر ایمان قبول کیا۔ یہودی کہتا ہے رکو، یہ تو پوچھو کہ میں نے تمہارے ہاتھ پر کیوں ایمان قبول کیا؟ تو کسی مولانا کو نہیں دوں، کیوں تمہارے ہاتھ پر ایمان قبول کیا؟ حذیف نے کہا حضرت حذیف صاحب میرے کو نہیں معلوم، میرے کو چھوڑ دیں، میں بہت تھک گیا، بھوکا ہو گیا، پیاسا ہو گیا، پہاڑ کو توڑا، پہاڑ ہٹ گیا، ٹھیلا کھا تو ٹھیلا لا کے رکھ دیا، کلمہ پڑھا نے کہا کلمہ پڑھا دیا، اب تو میری جان چھوڑ دے۔ اس نے کہا سننا، یہودی نے کہا تو میں مسلمان ہو گیا، لیکن میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ آخری نبی آئیں گے، سننا جملہ، میں نے تورات میں پڑھا تھا آخری نبی آئیں گے اور ان کا امتی آئے گا، مرد ہوگا یا عورت ہو، سچی توبہ کرے اس کے حکم سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، اور سچی توبہ کرے وہ مٹی پہ ہاتھ رکھے گا، اوپر والا اس کو سونا بنا دے گا۔ اس یہودی نے کہا جو تم نے ٹھیلا اٹھایا اس میں مٹی تھی، تمہارا ہاتھ لگا اللہ نے سونا بنا دیا، میں سمجھ گیا تیرے سے بڑھ کر توبہ کرنے والا کوئی نہیں، تو کسی اور کے ہاتھ پر کیوں، تیرے ہاتھ پر ایمان کیوں قبول نہ کر لو؟ تو میرے دوستو چلو نا، ہم بھی جو میرے کو کہنا تھا غصے میں کہہ دیا، ڈانٹ کے کہہ دیا، لیکن یہ تو ہم اللہ کے بندے نا بھائی، اگر آپ گنہ گار ہے تو میں تو ڈبل گنہ گار ہوں، ایسا تو ہے نہیں کہ میں کوئی پاڑسا ہوں، آپ گنہ گار ہے میں بھی گنہ گار ہوں۔ آج رات کو ہم اسی کے دربار پہ چلے اور رو کے اس سے معافی مانگ لیں، تاکہ کل جب 9ویں محرم اور 10ویں محرم آئے تو ہم حضرت حسین سے کہتے کہ گئے سال تک ہم نام تیرا لیتے تھے، دامن کسی اور کا تھامتے تھے، لیکن اب ہم آشتا والے نام بھی تیرا لیں گے، دامن بھی حسینی کا۔ کون کون تیار ہے؟ بولو ہاتھ اوپر کرے بھائی، سچی توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک بار سچی توبہ کرو، اگر پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، اگر توبہ کرنے والا مٹی میں ہاتھ رکھے تو سونا بن سکتا ہے، تو توبہ کرنے والے کی دکان کیوں نہیں چل سکتی؟ اس کا کاروبار کیوں نہیں چل سکتا؟ اس کی بیوی اور بچے فرما بردار کیوں نہیں ہو سکتے؟ لیکن توبہ کرے تو صحیح، تو کون تیار ایک دن سچی پکی توبہ کرے گی؟ کوئی کہیں انشاءاللہ۔ لیکن توبہ کرنے سے پہلے حضرت حسین کی وہ وصیت بھی یاد رکھے جو آپ نے زبان سے نہیں کہی، لیکن زبان حال سے سب کو بتا دیا کہ نبی کی نماز سے جان دے سکتے ہیں مگر نماز قضا۔ ان کو نام سے تیار ہے حسین کا دامن، اب بولو بولو ہمت کے ساتھ بولو حسین کا دامن، اور بلند آواز سے بولو حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔
नमाज का दामन नहीं छोड़ेंगे। आप लोग आज की इशा से नमाज पढ़ना शुरू कर दे, भले जितनी भी बाकी और धीरे धीरे पढ़े, मगर इतना जरूर लिख दिया जाएगा कि आशा वाले ने हुसैन का दामन थाम लिया, हुसैन से मोहब्बत कर ली, मुस्तफा से मोहब्बत कर ली और अल्लाह ने उसको अपना महबूब बना लिया। तो बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। और आपको मालूम है हर नमाजी जन्नती होता है और हर बेनमाजी, बोलो हर बेनमाजी। तो आज हम नमाज का भी वादा करें और तौबा भी करें। कौन कौन तैयार है मेरे साथ में? मैं आपको दोनों बातें बताऊंगा। देखो कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है नमाज पढ़ो जन्नत अता करूंगा। अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून उलाइका फी जन्नातिन मुकरमून। अल्लाह फरमाते प्यारे बंदे और बंदियां पांच वक्त नमाज की पढ़े, तुम बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और तौबा करेंगे तो क्या होगा? अल्लाह क्या फरमाते वाले मेरा बंदा तौबा करिए, एक एक गुनाह माफ करूंगा। सुनना पहली बात। नंबर 2 बोलो सुभान अल्लाह। तो बोलो नंबर 2 बगैर हिसाब किताब के जन्नत में पहुंचा दूंगा। नंबर 3 कयामत में कोई जलील होगा तुझे जलील नहीं होने दूंगा। नंबर 4 कयामत में सबके लिए अंधेरा होगा, अल्लाह कह दे तेरे वास्ते मेरा नूर तैयार हो जाएगा। पढ़ेंगे सब पढ़ेंगे मेरे साथ में। ये 4 बातें अल्लाह किसको कह रहे? तौबा करने वाले को। 28वां पारा मेरे साथ में पढ़ो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार और तौबा। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करे भाई। इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। चलो अगर शहरियात और यहाँ के जिम्मेदार और जितना मजमा है, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ हमारे गाजी साहब का। मुफ्ती लईक कौन है? मुफ्ती लईक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और जिससे उलमा किराम बैठे और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया और सारे बनने का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। खास तौर से हमारे नौशाद भाई का जो हेलीकॉप्टर लेने के लिए मुझे पहुँचे और बड़ी मशक्कत के साथ आए हम यहाँ पर। वो लेकर आए, उन्होंने तकलीफ उठाई, हमने क्या तकलीफ उठाई। अल्लाह हमारे नौशाद भाई की भी उम्र में और यूँ कहो कि अल्लाह सबको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह हमारे मरहूमी मरहूमा की करवट मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह हमारे नौशाद भाई के वालिद साहब की उम्र में भी खूब बरकत और तंदुरुस्ती और सेहत के फैसले फरमाए। और हमारा दो शहरिया ये भी मालूम है। अब बात करोगे घर में से मना करते नहीं, चलो बाद में बात कर लेंगे क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा। अगर अल्लाह आप सबको बहुत अच्छा रखे और मैं फिर एक मरतबा कहूँगा यहाँ आशा में भी जितने मरहूमी मरहूमा अल्लाह सबकी करवट मग़फ़िरत फरमाए, जितने बीमार अल्लाह सबको शिफा अता फरमाए और नमाज का वादा पक्का इंशाअल्लाह। सबका शुक्रिया भी अदा कर लिया। अब मेरे को एकदम ईमान से बताओगे, डिसिप्लिन से बताओगे तो हाँ, नहीं तो ना। मुलाकात करना है या नहीं करना? आप लोगों को मेरी मुलाकात करना है या नहीं करना? देखो एक मसला सुनो, मुलाकात करना सुन्नत है और मस्जिद में शोर करना हराम। अब अक्सर मैंने आशा में देखा कि मुलाकात करने आते बेधक्का, तो घर पे बैठा हूँ फिर धक्का करने की क्या जरूरत है? भाई मैं बैठा हूँ 1 घंटा लगेगा ना, और कितना होगा? बैठा हूँ अपनी जगह पर, लेकिन फिर भी धक्का मारेंगे, फिर एक लाइन बना के इधर खड़े हो जाएंगे, बाहर जमा होकर खड़े हो जाएंगे, शोर करेंगे। ये क्या हमारे मुसलमानों की डिसिप्लिन है? ये हमारा रिस्पेक्ट है? यहाँ पर रूल और रेगुलेशन को निभा रहे हैं? इससे मैं एक शर्त करूंगा, अगर आपका शोर हंगामे की आवाज आई तो उठकर चला जाऊंगा। फिर मत कहना कागजा तो वो तुझे दिमाग में, कोई मुझे दिमाग बना दे। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ तुमसे भी घटिया आदमी हूँ मैं। क्यों घटिया आदमी मालूम है? क्योंकि तुमने जब कलमा पढ़ा ना तो तुम्हारे अब्बा कलमा पढ़ते थे, तुम्हारे दादा कलमा पढ़ते थे, तुम्हारे परदादा कलमा पढ़ते थे। मैंने जब कलमा पढ़ा तो हमारे घर में कलमा नहीं था। तो मैं घटिया हुआ कि नहीं हुआ?
तुम्हारा तो होगा बाप दादा ने ऐसा किया था तो मगफिरत हो गई, हम क्या बोलेंगे बाप दादा ने मगफिरत। इसलिए मैं तो घटिया आदमी तुमसे, तुम मेरे लिए दुआ करोगे इंशाअल्लाह। लेकिन हाँ, मस्जिद का एहतराम नहीं जाएगा। मस्जिद माशाअल्लाह बहुत प्यारी बनी है और आगे बन रही है। मैं तो चाहता हूँ कि कलेक्शन अभी करो, बहुत आसान तरीका है। अच्छा हुआ तुमने बताया, अभी मैं कलेक्शन करता हूँ, यहाँ पे चादर लगा और कलेक्शन ऐसा होगा, पहले हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद में एक तरफ से आप लोग आओगे, शो हंगामा नहीं। देखो ये मेरी मुलाकात करोगे, इसमें पैसा रखोगे, 500 रखो, 1000 रखो, 2000 रखो, जो रखने रखो। मेरा मुलाकात भी होगी और मेरे को बरकत भी मिलेगी और मैं यहाँ रुमाल तक पहुँचाते जाऊंगा, सारा पैसा मस्जिद में। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे अरे गाड़ी साहब ने अचानक ऐलान किया, हम लोग पैसा लेकर नहीं आए। कोई बात नहीं, पैसा लेकर नहीं आया, मुंह में जबान तो लेकर आया कि वो भी बीवी को लेकर आया, जबान लेकर आया। यहाँ पे जिम्मेदार को बोल दे, यहाँ इमाम साहब को, शहरियार को बोल दे, भाई इतना मैं कल पहुँचा दूंगा, 2 दिन बाद पहुँचा दूंगा, महीने के बाद पहुँचा दूंगा, हर महीने में पहुँचाऊंगा। कभी पहले वहाँ हैदराबाद में किया, ऐसा हुआ। अचानक मुझे कहा कि मौलाना वो करने का अल्लाह का एहसान और करम में इतनी लंबी रकम हुई, हैदराबाद वालों ने कहा कि हमारी यहाँ की तारीख में पहली मरतबा ऐसा चंदा हुआ है। तो अगर हैदराबाद ऐसा करते थे तो हमारा आज तक है तो पीछे रहेगा। भाई आओ, इधर से आओ, यहाँ हाथ में रखते जब जो भी रखोगे 100, 200, 500, 2000, अरे 5000 और मुँह में जबान से जो बोलना। और मैं तो कहता हूँ 10-20 रुपया भी रखो ना, अल्लाह कभी भी क्वांटिटी नहीं देखता, अल्लाह क्वालिटी देखता है। अल्लाह ये देखता है कौन सा। अब भाई कोई मौलाना है, उसने 10 रुपया रखा, उसका 10 रुपया आपके 1 लाख से आगे जाएगा, क्योंकि आपकी जो पगार होगी मौलाना की पगार होगी। मौलाना को तो कैसा अभी मैं हैदराबाद में था, मैंने कहा इतना बड़ा कलेक्शन करवाया, बस खाली इन्होंने कहा मदद आया और देता गया, कोई 50,000, कोई 10,000, कोई झगड़ा जमा हो गया पैसों का। फिर मैंने इमाम साहब को ऐसे प्यार मोहब्बत से किया, इमाम साहब यहाँ के लोग तो बहुत सच्ची लाता है, आपका भी बहुत इंशाअल्लाह। तो मेरे को कहते हैं मौलाना मेरी 10,500 रुपया पका दें। तो मैंने कहा इतना कुछ दिया, वो खाली अहमद अली का नाम सुना, दुआ हो गई। मैंने फिर वही पका, मैंने कहा इमाम साहब की तनख्वाह भी बढ़ा, तो आपका नाश्ता महीने का 20,000 रुपए का और इमाम साहब का और मोहसिन साहब का पूरा महीना 8 और 10,000 का, तो कयामत में जवाब नहीं देना है हमको। हम इंसान है तो वो जानवर है, हमारी बीवी है तो उसकी बीवी नहीं है, हमारे बच्चे तो उसके बच्चे नहीं है, बल्कि शहर मौलवी के बच्चे ज्यादा होते हैं। हाँ, मुझे मुफ्ती नहीं सकता मैं, मौलाना के बच्चे सारे मेरे को इन्हें पूछा गया, मौलाना तुम लोगों के बच्चे काय को नाता होते हैं? मैंने कहा ऊपर वाले का करम है। पूछने को कहा तुम हमारे ऊपर करम नहीं पहुंचता। मेरा दिमाग गया, मेरे बहुत मफरत पहुंच गया। मेरे को कहा लेकिन मौलाना तुम्हारे किसी के 4, किसी के 6, किसी के 8, हमारे यहाँ बड़ी मुश्किल से 1-2 होता। तो मैंने कहा अल्लाह का करम है, तो अल्लाह का करम कोई भी नहीं होता, हमने नहीं होता। मैंने कहा नहीं, बहुत बड़ा फर्क है, तेरे घर में टीवी, हमारे घर में टीवी, तू वहाँ बिजी, हम यहाँ बिजी। चला ही गया गाजी सब, चला ही गया मौलाना को कभी खेलने का नहीं। मौलाना को ये जो इमाम साहब और जो मौलवी होते हैं ना, आपको मालूम है अज़ान देने वाला अज़ान देकर अल्लाह अकबर सिर्फ कहता है ना, अल्लाह फरिश्तों को कहता है जहाँ तक इसकी आवाज़ जाती है ना, वहाँ का कंकर और पत्थर भी इसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। और नमाज पढ़ाने वाला जब नमाज पढ़ा देता है और इमाम बन जाता है, उसका मकाम इतना ऊंचा हो जाता है, इतना ऊंचा हो जाता कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत में फरमाएगा इमाम को ज़ामी, यानी ये मस्जिद में आके था, तेरा कोई मुक्तदी उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगा जब तक इमाम खुद जन्नत में नहीं चला जाएगा। भाई अपने रहबर के साथ ऐसा मामला मत करो। तो चलो अब तो खैर इमाम बहुत दिन की बात तो साइड पे रही, इस वक्त तो अपने को मस्जिद का काम करना है, दुआ होगी, रोएंगे बोलो इंशाअल्लाह, फिर मेरे हाथ में मुलाकात करोगे इंशाअल्लाह, और अच्छा खासा हो जाना चाहिए। अल्लाह आपके जान में माल और में सही तो और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। दुआ करता हूँ अगर आपके जान माल में उम्र में खूब बरकत अता फरमाए, अल्लाह खूब तंदुरुस्ती अता फरमाए। वैसे भी मेरे को मालूम है जब भी मैं आस्था आया कि नौशाद भाई ने मेरे को खाना खिलाया, नौशाद भाई ने मेरे को रखा। मेरे को तो कभी कभी लगता है आस्था में चूल्हा जलता कि नहीं जलता, शहरी आके घर में भी जलता कि नहीं जलता। वो अल्लाह गया तुम्हें एक बार खिलाया, याद दिला। हाँ मेरे को मालूम था, मैंने जान बुझ कर कभी बोलेगा कि मैंने बे वक्त तो खिलाया था, तो इसने फौरन काम खिलाया भाई, तेरा एहसान तूने खिलाया। हाँ लेकिन खैर हमारे आस्था वाले मेरे भी
एयरपोर्ट पर था ना, तो मैंने कहा भाई आस्था जा रहा हूँ ना, मेरे को ऐसा लगता कि मैं अपने घर में जा रहा हूँ। तो मैं तो आपको, और मैंने जो बयान में आपको जो गुस्से में कहा वो अपना समझ कर कहा, कोई छोटा समझ कर नहीं कहा। चलो सब दुआ करेंगे इंशाअल्लाह, लाइट बंद करने की फिक्र करें। और बिल्कुल थोड़ी देर के लिए दाएं बाएं कौन मेरे को नहीं मालूम, मैं और मेरा, साथ में बोलो मैं और मेरा